Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है जूलियस सीज़र, जिसका हमने पहला पार्ट कल पढ़ा है। आज इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जूलियस सीज़र अपने मुल्क वापस आता है। एक बड़ी लंबी जंग लड़के, वो एक बड़ा लंबा वॉर लड़के वो अपने मुल्क में वापस कामयाब होके आता है। तो उसकी कामयाबी से डर के जो वहाँ के कुछ सेनेट के कुछ लोग थे, वो इस कामयाबी पे उनको कुछ शक हो जाता है। वो डर जाते हैं कि कहीं जूलियस सीज़र उनका किंग ही ना बन जाए। और उनका जो लीडर होता है ब्रूटस, इन कुछ आदमियों का, तो वो इसको दिन दहाड़े कत्ल करवा देते हैं। और फिर उसके बाद जो जूलियस सीज़र के लोग होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो इसके कत्ल का बदला लेते हैं और इन लोगों को जिन्होंने जूलियस सीज़र को कत्ल करवा दिया होता है, उनको दिन दहाड़े उनको फिर 1 साल की लड़ाई लड़ने के बाद उनको भी वापस कत्ल कर देते हैं। तो कल हमने पढ़ा कि ये जो जूलियस सीज़र था, ये रोम का एक बहुत ही ग्रेट एक सोल्जर था और ग्रेट लीडर था वहाँ का। तो वहाँ पे जब ये इसकी मशहूरी बढ़ने लगी, तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिनका लीडर ब्रूटस था, जिनका लीडर ये था अ, जिसका नाम था केसियस। तो उसको ये उसकी कामयाबी, बढ़ती हुई कामयाबी पे उसको डर लगा कि कहीं जूलियस सीज़र उनका बादशाह ही ना बन जाए। तो वो चालबाजी से काम लेकर जूलियस सीज़र के करीबी दोस्त ब्रूटस को अपने साथ मिला लेता है। और कुछ और लोग भी इसके साथ मिले हुए होते हैं जो इसकी बढ़ती हुई कामयाबी से जल रहे होते हैं। उनको ये पसंद नहीं होता है कि जूलियस सीज़र इतना कामयाब हो जाए। और फिर उनको ये लगता है कि पिछले 3 नेशनल गेम्स में जब जूलियस सीज़र को मार्क एंटोनी जो था, जो जूलियस सीज़र का दोस्त भी था और बड़ा एक ग्रेट सोल्जर भी था, फेमस सोल्जर भी था, तो उनको लगा कि जूलियस सीज़र जो जिसने पिछले 3 नेशनल गेम्स में इसको क्राउन पेश किया था, मगर जूलियस सीज़र ने ये रिफ्यूज़ किया था। अब उनको ये लग रहा था कि अब की बार अगर जूलियस सीज़र को ये क्राउन पेश किया गया तो जूलियस सीज़र इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे आगे। तो Brutus went home greatly disturbed in mind. He could not sleep. He wondered how Caesar would be cured of his proud nature and ambitious greed. It must be by his death, he at last decided sadly. We could never be certain how Caesar might act if he gained absolute power. In the middle of the night, Cassius, Casca, Decius, and other members of their party came secretly to see Brutus. Together they discussed their plans. Caesar was to be killed the next day at the Capitol, the town hall, where he was going to make a speech to the people. They wanted to kill Mark Antony too, but Brutus would not permit this. Antony is but a limb of Caesar, he said. He can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off. He shook his head and spoke with great urgency. I wish we could cure Caesar's ambition without killing him, but I doubt it that is but I doubt if that is possible. So Caesar must die. But friends, let us kill him bravely, not angrily. We must have no bitterness in our hearts. So it was decided that only Caesar should die. The next day was dark and cloudy. There had been thunder and lightning all night long with terrible storms of wind, and the whole earth had shaken and trembled. Caesar was begged by his wife Calpurnia not to go to the capital that morning. She had had a most frightening dream in which Caesar's statue, which stood in the marketplace, had poured forth blood, and the Roman people came smiling to wash their hands in it. She told him, someone saw a lion in the marketplace, and graves opened and gave up their dead. There was the noise of battle in the air,
and the cries of men and horses in pain. O Caesar, these things are beyond all understanding, and I do fear them. I am sure they are waiting. Something terrible is going to happen to you. Caesar tried to comfort his wife, but at last she was successful in persuading him to stay at home. Cassius had suspected that this might happen, and he sent Decius to call for Caesar to bring him to the capital. When Decius learned about Calpurnia's dream, he laughed at her fears. You have interpreted the dream all wrong. The blood from Caesar's statue is in which so many smiling Romans dipped their hands mean that great Rome will suck fresh blood from Caesar. He turned persuasively to Caesar. It means that your people will find new prosperity under your rule. So, you have explained it well, said Caesar. तो अब हमने कल देखा कि ये जो ब्रूटस और केसियस थे, उन्होंने ये चीज़ को उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जो जूलियस सीज़र है उसकी जो ग्रोइंग पावर है ये उनके लिए ख़तरे की बात है, उसकी उनकी कंट्री के लिए ख़तरे की बात है। तो अब ब्रूटस जब अपने घर चला जाता है, ब्रूटस वेंट होम ग्रेटली डिस्टर्ब्ड इन माइंड। ब्रूटस अपने घर चला जाता है मगर वो जहनी तौर से बड़ा डिस्टर्ब था। ही कुड नॉट स्लीप, वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। ही वंडर्ड हाउ सीजर वुड बी क्योर्ड ऑफ हिज प्राउड नेचर एंड एम्बिशियस ग्रीड। उसको ये परेशानी खाई जा रही थी, उसको ये टेंशन उसको हो रहा था कि जो उसका दोस्त जूलियस सीजर था उसको कैसे हम इस जो उसके एम्बिशंस हैं, जो उसकी जो लालच है, जो उसकी जो ग्रीड है बादशाह बनने की, उससे इन चीज़ों से इसको कैसे बाज रखा जाए। इट मस्ट बी बाई हिज डेथ एट लास्ट ही डिसाइडेड सैडली। उसने आखिरकार अपने जहन में ये फैसला कर दिया कि जूलियस सीजर को हम सिर्फ एक ही चीज़ से रोक सकते हैं, वो है उसकी मौत से। यानी कि उसको उसकी मौत ही, जूलियस सीजर की मौत ही उसको इन एम्बिशन से रोक सकती है। वी कुड नेवर बी सर्टन हाउ सीजर माइट एक्ट इफ़ ही गेंड एब्सोल्यूट पावर। उसने अपने आप से बातें करते हुए ये कहा कि हमें पता बिल्कुल भी नहीं है, हम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जूलियस सीजर कैसे बिहेव करेगा अगर उसको एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगी। यानी कि अगर उसको बादशाहत मिल जाएगी तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जूलियस सीजर कैसे बिहेव करेगा। ये ब्रूटस अपने आप से बातें कर रहा है, अपने दिमाग में सोच रहा है। In the middle of the night, Cassius, Casca, Decius and other members of their party came secretly to see Brutus. और रात के अंधेरे में आखिरी पहर में कैसियस, कैस्का और डेसियस और उसकी पार्टी के और मेंबर जो ये चाहते थे कि जूलियस सीजर को मारा जाए, वो बिल्कुल सीक्रेटली ब्रूट्स के घर आ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। टुगेदर दे डिस्कस्ड देयर प्लान्स, उन्होंने मिल के अपने प्लान्स बनाए। Caesar was to be killed the next day at the capital, the town hall, where he was going to make a speech to the people. उन्होंने आखिरकार ये फैसला कर लिया कि सीज़र को हम अगले दिन कैपिटल यानी कि जो वहाँ का टाउन हॉल था जहाँ पे सीज़र अपने लोगों से खिताब करने वाला था, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि सीज़र को इसी अगले दिन उसी कैपिटल हॉल में मारा जाएगा, यानी कि उसको कत्ल कर देंगे वहीं पे। दे वॉन्टेड टू किल मार्क एंटनी टू बट ब्रूट्स वुड नॉट परमिट दिस। उनने ये भी फैसला कर लिया था कि हम मार्क एंटनी को भी कत्ल कर देंगे, मगर ब्रूट्स ने इस चीज़ की उनको परमिशन नहीं दी, इजाज़त नहीं दी। उसने क्या कहा, एंटनी इज़ बट ए लिम टू सीजर, ही सेड। उसने कहा कि यार एंटनी से हमें कोई खतरा नहीं है, एंटनी सिर्फ उसकी जो सीजर है उसकी बॉडी का एक हिस्सा है। ही कैन डू नो हार्म दैन सीजर्स आर्म व्हेन सीजर्स हेड इज़ ऑफ। उसने कहा कि यार वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर हम जिस तरह से हम किसी इंसान का जो उसका सिर है जब उसकी बॉडी से अलग करते हैं तो उसकी बॉडी के दूसरे हिस्से कोई काम नहीं कर सकते, उसी तरह से जिस तरह जब हम सीजर को कत्ल कर देंगे तो मार्क एंटनी उसकी जिस्म का एक आर्म के जैसे वहाँ पे रहेगा, यानी कि वो कोई हरकत भी नहीं कर पाएगा, तो उससे हमें कोई ख़तरा नहीं है। ही शुक हिज हेड एंड स्पोक विद ग्रेट अर्जेंसी।
यानी कि जो ब्रूट्स था उसने अपने सिर को इनकार में हिलाया, बोला कि हम मार्क एंटनी को नहीं मार सकते हैं, और उसने बहुत ही जल्दबाजी में क्या कहा, आई विश वी कुड क्योर सीजर्स ambitions without killing him, but I doubt if that is possible. इसने कहा कि काश कि हम सीज़र को उसके इस एम्बिशन से रोक सकते, मगर मुझे बिल्कुल भी इस बात पे यकीन नहीं है कि हम इसको कि रोक सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है हम उसको इस चीज़ से नहीं रोक सकते हैं। सो सीज़र मस्ट डाई, तो इसलिए सीज़र को अब मरना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स लेट्स किल हिम ब्रेवली नॉट एंग्रीली। उसने कहा मगर दोस्तों मेरी सिर्फ एक गुजारिश ये है कि हम उसको एक बहादुर की मौत दें, न कि उसके साथ कोई हम दुश्मनी पाल उसके साथ कोई दुश्मनी रखें। वी मस्ट हैव नो बिटरनेस इन आवर हार्ट्स, हमें उसके खिलाफ कोई भी बिटरनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी दुश्मनी, कोई भी बुग़्ज़ और ज़िद नहीं होनी चाहिए उसके खिलाफ। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट ओनली सीज़र शुड डाई, तो इसलिए ये फैसला हुआ कि सिर्फ सीज़र को ही हम कत्ल कर देंगे, ना उसकी फैमिली को, ना उसके बच्चों को, ना उसके दोस्तों को। द नेक्स्ट डे वॉज डार्क एंड क्लाउडी, जो अगला दिन था वो बहुत ही अबर आलू था, बहुत ही डार्क था, यानी कि सूरज भी बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। देयर हैड बीन थंडर एंड लाइटनिंग ऑल नाइट लॉन्ग विथ टेरेबल स्टॉर्म्स ऑफ विंड एंड होल अर्थ हैड शेकन एंड ट्रेम्बल्ड। जो उससे जो अगली जो रात थी, उस रात को बहुत ही बादल गरज रहे थे, बहुत ही बिजलियां चमक रही थी, बहुत ही यानी कि तेज़ हवाएं चल रही थी, तूफ़ान चल रहे थे, और तमाम जो ये ज़मीन है बिल्कुल तमाम ज़मीन को इस हवा ने हिला दिया था। इतनी बारिशें, इतनी हवाएं, इतने बादल गरजे और इतनी बिजलियां चमकी। सीज़र वॉज बेग्ड बाई हिज वाइफ कैल्पर्नियन नॉट टू गो टू द कैपिटल दैट मॉर्निंग। तो सीज़र की जो बीवी थी उसने इसको बहुत मिन्नतें की और इसकी मिन्नत समझते की, और उसको कहा कि आप आज वहाँ पे कैपिटल मत जाओ। She had a most frightening dream in which Caesar's statue, which stood in the marketplace, had poured forth blood, and the Roman people came smiling to wash their hands in it. उसने जो जूलियस सीजर की जो बीवी है, उसने उसको बताया कि मैंने बहुत ही डरावना सपना आज देखा, जिसमें मैंने ये देखा कि जो तुम्हारा जो स्टैचू है, यानी कि तुम्हारी जो मूर्ति वहाँ बाज़ार में रखी हुई है, मैंने देखा कि इस मूर्ति से खून उबल रहा है, और जो रोम के लोग हैं वो बड़े हंसते मुस्कुराते तुम्हारे स्टैचू के खून से वो अपने हाथों को मुस्कुराते हुए धो रहे हैं। एंड शी टोल्ड हिम सम वन सॉ a lion in the marketplace and graves opened and gave up their dead। उसकी बीवी ने उसको ये भी कहा कि कुछ लोगों ने ये ख्वाब भी देखा है कि जो लाइन एक है, किसी ने लाइन को मार्केट में देखा है, किसी ने ये देखा है कि जो कब्रें हैं वो खुल गई हैं और उन्होंने अपने मुर्दों को बाहर फेंक दिया है। देयर वॉज द नॉइज़ ऑफ बैटल इन द एयर, किसी ने ये भी देखा ख्वाब में कि कुछ शोर शराबा हो रहा है जंग का, और द क्राइज ऑफ मैन एंड हॉर्सेस इन पेन, और किसी ने देखा कि लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और जानवर भी चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। उसने अपने खाउन से क्या कहा, अपने हस्बैंड से क्या कहा रोते रोते, ओह सीजर दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग आई डू फेयर देम। ने कहा सीजर ये जो जितने भी ये ख्वाब लोगों ने देखे हैं और जो ख्वाब मैंने देखा है, ये हमारी समझ से बाहर है, और मुझे बहुत ही डर लग रहा है, हम ये इसको बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। आई एम श्योर दे आर वार्निंग्स, समथिंग टेरेबल इज़ गोइंग टू हैपन टू यू। इसने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि ये हमें वार्निंग दी गई है ख्वाबों में, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सीजर ट्राई टू कम्फर्ट हिज वाइफ बट एट लास्ट शी वॉज सक्सेसफुल इन परsuading हिम टू स्टे एट होम। सीजर ने बहुत कोशिश की अपनी बीवी को समझाने की, बुझाने की, मगर उसकी बीवी ने नहीं माना, और आखिरकार सीजर इस बात पे राज़ी हो गया कि वो आज उधर कैपिटल पे नहीं जाएगा। Cassius had suspected that this might happen and he sent Decius to call for Caesar and bring him to the capital। जो केसियस था उसको यकीन था, या उसको ये पहले से ही शक था कि शायद सीज़र आज वहाँ पे कैपिटल में नहीं आएगा, तो इसलिए उसने वहाँ पे केसियस को भेजा ताकि वो सीज़र को कैपिटल ला सके। When Decius heard about Calpurnia's dream, he laughed at her fears।
तो जब उसने डेसियस ने ये कैलिफोर्निया का ख्वाब सुना तो उसने हंसते हंसते क्या कहा, उसको बड़ी हंसी आई और उसने कहा, यू हैव इंटरप्रेटेड द ड्रीम और रॉन्ग। उसने कहा कि भाभी, तुमने ये जो ख्वाब है उसकी ताबीर गलत निकाली है। इसकी ताबीर ये नहीं है कि सीजर के साथ कोई बुरा होने वाला है, बल्कि द ब्लड फ्रॉम सीजर स्टैचू इन विच सो मैनी surviving Romans dipped their hands means their great Rome will suck fresh blood from Caesar। तो उसने कहा कि तुमने गलत ये ख्वाब देखा है, कि जो ख्वाब में तुमने ये देखा है कि सीजर के स्टैचू से लोग उसके खून से हाथ धो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मुल्क हमारा है ये तरक्की करने वाला है सीजर की लीडरशिप में। ही टर्नड परसुएसली टू सीजर। अब ये सीजर की तरफ मुड़ा और कहा, इट मीन्स दैट यूर पीपल विल फाइंड न्यू प्रॉस्पेरिटी अंडर यूर रूल। इसने कहा कि सीजर, तुम ये ख्वाब को गलत ताबीर कर रहे हो, ख्वाब को गलत अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लीडरशिप में रोम के लोग बहुत बड़ी तरक्की करेंगे और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल सेड सीजर। सीजर ने कहा, देखो भाई, तुमने अब मेरे ख्याल से इस ख्वाब की सही ताबीर निकाली है। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस जूलियस सीजर। इंशाल्लाह हम कल इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।